and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. Today we are going to cover, after a long time, after almost 2 weeks, I'm going to take 9th standard lecture, and we are going to finish the chapter number 4, Economic Development of History. This is lecture number 4 and we have taken third lecture I guess 2 weeks ago. So अगर तुम लोग को वो रिवाइज करना है तो पहले वो कर लो, फिर ही ये लेक्चर देखना, ठीक है? This is 9th standard lecture and Basit sir welcoming you to your own classes, The Tutors. Now, we are going to cover 3 topics today: New Economic Development, Remedies and World Trade Organization, which will be the last topic for this lecture number 4 and this chapter. Okay? हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करेंगे और फिर चैप्टर नंबर 4 को हम लोग कंप्लीट कर देंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी political science part. Okay, now new economic development. The year 1991 is very important in the history of modern India. After the 10th general elections, PV Narasimha Rao became the first PV Narasimha Rao became the Prime Minister of India. 10th general elections, Lok Sabha election, 10वां लोकसभा इलेक्शन जब हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर. हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? डॉक्टर मनमोहन सिंह. ही अडॉप्टेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिंकिंग इंडियाज इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी. ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको फॉर्मुलेट करने का काम किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह. ठीक है, मनमोहन सिंह. इन्होंने क्या किया? What he did, he collaborated or you can say he opened the Indian market with the international market or global market you can say. मतलब पहले सिर्फ इंडिया की ही चीजें बिकती थी, अब इंडिया में बाहर की भी चीजें बिकना चालू हो गई है, बाहर की कंट्रीज में इंडिया की चीजें बिकना चालू हो गई है. Why he did? Just because there were some reasons. I will explain you those reasons right now. Okay. For this, fundamental changes were brought about in the Indian economy. Indian economy was brought into tune with the global mainstream. पहले इंडियन इकोनॉमी जैसे चलती थी अब वैसे नहीं चलती है. First, Indian economy used to work according to the government. Now Indian economy is working ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंट्री में भी एग्जिस्ट करती है. पहले सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सी आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ 85-15% रेशियो. ये पब्लिक सेक्टर में हुआ करता था और ये प्राइवेट सेक्टर में हुआ करता था. ठीक है, 1991 के पहले, बिफोर 1991 इन इंडिया देयर वर 85% पब्लिक सेक्टर कंपनीज. पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस व्हाट? गवर्नमेंट कंपनीज. एंड देयर वर जस्ट 15% प्राइवेट सेक्टर कंपनीज व्हिच वर वेरी लेस इन नंबर्स. व्हाई? Because if you want to open a private sector organization, that means you need to have a license to open that particular business. You need to make proper arrangements. You need to make certain rules and regulations to run your business. You need to take permission from the government organizations to run that particular business. इतना सारा पेपर वर्क, इतने सारे परमिशन, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे कि प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस खोल ही नहीं पाती. इससे क्या होता था? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा स्कोप नहीं मिल पाता था. सो व्हाट डॉक्टर मनमोहन सिंह डिड, ही जस्ट टर्न्ड द टेबल. इन्होंने 85% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और पब्लिक सेक्टर को 15% दे दिया. मतलब उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, नाउ टिल नाउ वी वेर अंडर द पब्लिक सेक्टर रूल. ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, नो डाउट. We are still under mixed economy. We were still in mixed economy, but पहले प्राइवेट सेक्टर का मिक्सिंग वाला पार्ट जो था वो बहुत कम था. The proportion of private sector in this mixed economy was very less. The ratio of private sector was very less. Whereas after 1991, private sector organizations got boom. उनको ज़्यादा फैसिलिटीज मिली बिजनेस कंडक्ट करने के लिए. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लाइसेंस निकाल दिया गया. ठीक है,
you want to do any business, you can do any business which is not harmful for the country, which should not be illegal, which should not be like smuggling. If you are doing a right business, you are allowed to do a right business without any license, without any registration. Registration is a need, करना जरूरी है but जरूरी नहीं. It is not compulsory but you need to do that. ठीक है, उससे तुम्हारा ही फायदा है. आगे बढ़ते हैं. ठीक. During this period, Indian economy was in a crisis situation. Before P.V. Narasimha Rao government took charge, Chandrasekhar was the prime minister during his tenure and the rate of inflation was 17%. P.V. Narasimha Rao, इनके पहले जो गवर्नमेंट थी, इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर, ओनली चंद्रशेखर. ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके टाइम पे, चंद्रशेखर के टाइम पे, inflation rate of India was 17%, which was very very huge. India was under a very deep inflation. बहुत ज़्यादा गहराई में घुस चुके थे हम लोग, बर्बादी के, you can say. We were under tremendous pressure of economic crisis. Economic growth rate had gone down to 1.1%. Economic growth rate जो था 1.1% पे पहुंच चुका था, which is again very less. India had foreign exchange reserve only enough to import for a week. इंडिया के पास सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना बचा था? सिर्फ एक हफ्ते का बचा था. मतलब इतना कम पैसा कि हम लोग एक हफ्ते में कंगाल हो जाएंगे, इतना कम पैसा था हमारे पास. इट हैड बिकम डिफिकल्ट टू पे बैक इट्स लोन्स एंड इवन गिव द इंटरेस्ट ऑन इट. हमने जिन जिन कंट्रीज से लोन लिया था, उन कंट्रीज के लोन को पे बैक करने के लिए वी डिडंट हैड मनी. ठीक है. इन May 1991 the government had tried to control the situation by selling some of its gold reserves and by mortgaging them some. मतलब अपनी कंट्री का जो गोल्ड रिजर्व है उसको बेचने की और उसको मॉर्गेज पे रखने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, और उससे थोड़े बहुत पैसा उन लोगों ने चुकाया. ठीक है. बिफोर चंद्रशेखर गवर्नमेंट, वीपी सिंह गवर्नमेंट, ये भी एक प्राइम मिनिस्टर थे. पीवी नरसिम्हा राव के पहले चंद्रशेखर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे. उनके टाइम पे तो पूरी कंट्री की डिस्ट्रक्शन हो चुका था. उसके पहले जो थे प्राइम मिनिस्टर वो थे वीपी सिंह. उन्होंने भी 10,000 करोड़ रुपीस जो थे उसका लोन लिया था. वाह वाह वाह, इट इज क्वाइट अ ह्यूज नंबर. 10,000 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया था वो टाइम पे. सोचो, मतलब 1980s 1990s की बात कर रहे हैं हम लोग. इट इज क्वाइट अ ह्यूज एट दैट टाइम. 10,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया था एक सर्टेन कंट्री से उन्होंने, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू वेव आउट द लोन्स ऑफ फार्मर्स. कि तुमने जितना भी पैसा तुम किसी से भी लिया हुआ है हम उसको माफ कर देंगे. उन्होंने उनको पैसा, उस पैसे से फार्मर्स का लोन वेव आउट कर दो. ओके, इट इज अ गुड कॉज. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. बट डिड यू हैव एनी प्लान? मतलब उसके बाद का प्लान क्या है? ये 10,000 करोड़ रुपया पे कैसे करोगे? एकदम बोलते ना, बहुत हीरो बन के लोग कर देते थे काम, बट दे डिडंट हैव प्लान बी हाउ टू पे दैट पर्टिकुलर मनी इन रिटर्न. द प्रपोर्शन ऑफ internal loans of central and state government together to the gross domestic product was 55%. GDP, अपनी कंट्री का जितना इनकम होता है, एक सर्टेन ईयर में जितना इनकम होता है, उस इनकम का सिर्फ 55% पैसा जो था ना, इफ इंडिया इज अर्निंग 100 रुपीज, उसमें से 5% तो सिर्फ लोन का पैसा था. इफ इंडिया इज अर्निंग 100 रुपीज पर ईयर, दैट मीन्स 55 रुपीज इज जस्ट द मनी विच वी नीड टू पे टू अदर कंट्रीज. इतना लोन बढ़ चुका था. सोचो, in 1980, this number is quite a huge number. In 1980, 1981, foreign loan was 2,350 crore dollars. 2,350 crore डॉलर रुपीस का लोन चढ़ गया था हमारे कंट्री पे 1980-1981 में. It increased to 8,380 crore dollars in 1990-1991. Now these are not small numbers. We are counting them in dollars. वो टाइम का डॉलर का रेट निकालो और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो. द अमाउंट विच यू विल बी गेटिंग इन क्रोर्स, दैट विल बी द अमाउंट विच वी नीडेड टू पे टू अदर कंट्रीज. एंड इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. It is very very huge amount, and the country was under tremendous pressure of economic crisis. Country बहुत ज़्यादा बोलते ना, बहुत ज़्यादा pressure में. At this time, India had foreign exchange reserve of only 100 crore dollars.
8,380 रुपया, 8,380 rupees we needed to pay. 8,380 crore dollar rupees we needed to pay, but we just had 100 crore dollars. See the amount which we have. अगर हमने पूरा पैसा भी दे दिया ना, तो भी हार्डली वन, आई गेस 1% का भी लोन पूरा नहीं हो रहा है, 1% का लोन पूरा हो रहा है. This also had the background of the increased oil prices due to the invasion of Kuwait by Iraq. ये टाइम पे कुवैत के ऊपर इराक ने हमला किया था और कुवैत को इन्वेड कर दिया था, ठीक है. वो गल्फ कंट्रीज का उनका आपस का मामला है. उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस जो थे उसमें हाइक आ गई थी, जिसके वजह से इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था उसका. इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज अ लोन. अब इंडिया किसी से भी लोन नहीं ले सकता था, जस्ट बिकॉज वी डिडंट हैड एनी मनी टू पे. हु विल गिव अस द लोन? ठीक है, हम किसी का पैसा देने के लायक नहीं बचे थे, तो हमको लोन देगा कौन? इवन द नॉन रेसिडेंट Indians started withdrawing their deposits in foreign currency from India. जो NRIs थे उन लोग भी अपना पैसा लेके सिक्योर फील करना चाहते थे, बिकॉज इंडिया के पास तो कोई पैसा था नहीं. जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस थे उन लोग चाहते थे कि उनका पैसा तो बर्बाद ना हो, जो बाहर की कंट्रीज में रह रहे थे या जो इंडिया में रह रहे थे, जो बाहर की कंट्रीज से आए थे. उन लोग सब अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए उन लोग अपने पैसे को बैंक से विड्रॉ करना चालू कर दिए थे. कहीं कभी भी एक कोई भी बैंक बंद हो सकती है, कोई कंट्री बोल सकती है कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू पे योर मनी जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी मनी. तो पहले से ही बैंक में पैसा कम था, पहले से इंडिया के पास पैसा कम है, और भी लोग पैसा निकाल रहे थे, जिसकी वजह से और पैसा कम होता जा रहा था. एंड इंडिया वाज अंडर ट्रेमेंडस, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, इंडिया वाज अगेन ट्रेमेंडस डीप drenched pressure of economic crisis. I hope you people have understood what I am trying to explain you in new economic policy. क्यों बनाई गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? बनाया किसने था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया था. उनके पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई थी पिछले 10 साल में, उन्होंने ऐसा काम किया था जिसके वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस. इंडिया बहुत ज़्यादा लोन के बोझ में डूब गया था, जिसकी वजह से इंडिया को कुछ ना कुछ एक्शन लेना था जो इंडिया की इकोनॉमी को वापस से स्टेबल बनाएगा. और उसको स्टेबल बनाने का काम किसने किया था? तो वन एंड ओनली डॉक्टर मनमोहन सिंह. ये जो थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माना जाता है. कुछ लोग उनको मानते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने इंडिया के मॉडर्न इकोनॉमिक्स को, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा स्टेबल तरीके से, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने उसको इम्प्रूव किया था. ठीक है, इम्प्रूव, ही जस्ट टर्न्ड द टेबल. बहुत ज़्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग एक्शन था वो. यू वोंट बिलीव इसके बाद क्या हुआ. इन्होंने ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, तो इसके बाद क्या हुआ? ये रेमेडीज में शायद होगा, अगर नहीं है तो आई विल बी एक्सप्लेन यू इन दैट पर्टिकुलर थिंग. PV Narasimha Rao appointed Dr. Manmohan Singh as finance minister in order to find a way out of this situation. अब इतना ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन हो गया, इतनी सारी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, इतनी ज़्यादा इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब चुका था कि इंडिया को वापस से स्टेबल बनाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह, द ओनली रिलायबल पर्सन इन थॉट टू बी, उन्होंने उनको अपॉइंट किया और बोला कि वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, इंडिया एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ड्रॉबैक से जूझ रही है, एंड इंडिया को स्टेबल बनाने का काम और कोई कर सकता है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह. Dr. Manmohan Singh undertook many corrective measures. The situation began to change. उन्होंने धीरे धीरे बहुत सोच समझ के उन्होंने बहुत अच्छे से इंडिया को इकोनॉमी को वापस से स्टेबल बनाने की कोशिश की. We are studying remedies. We have completed new economic policy. What he did? Remedies क्या क्या थे? He removed the restrictions on foreign investment. आओ बाहर की कंट्री की कोई भी लोग इंडिया में आओ, इन्वेस्ट करो, लैंड खरीदो, अपनी कंपनी बनाओ, इधर अपना प्रोडक्ट बनाओ और बेचो. He restricted the license system to 18 industries. उन्होंने सिर्फ कुछ 18 इंडस्ट्रीज को ही बोला, कुछ एक सिलेक्टिव 18 इंडस्ट्रीज थी जिसके ऊपर लाइसेंस जरूरी था. बाकी सारे इंडस्ट्रीज को उन्होंने बोला कि यू कैन ओपन योर बिजनेस विदाउट एनी लाइसेंस. वो 18 इंडस्ट्रीज कौन सी थी? आई डोंट नो द लिस्ट राइट नाउ, बट 18 इंडस्ट्रीज में आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. लिकर इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्रीज है, इफ यू आर मेकिंग एनी मेडिकल, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तुम लोग ये सारी चीज़ों को बनाना है, तुमको तो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. टोबैको है, लिकर है, शराब दारू बोलते हैं ना जिसको, वो
कोई भी बिजनेस तुम लोग कर रहे हो तो तुमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. उस लाइसेंस के बिना यू कैन नॉट ओपन अ लिकर शॉप, यू कैन नॉट सेल टोबैको, यू कैन नॉट सेल फार्मास्यूटिकल गुड्स. In view of the increasing losses in the public sector industry, he opened the public sector for investment by private industries. पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इतना ज्यादा लॉसेस हो रहा था, गवर्नमेंट की कंपनीज में इतना ज्यादा लॉसेस हो रहा था कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ओपन कर दिया फॉर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. हाउ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज यू कैन इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज. In order to bring the share market under control, शेयर मार्केट भी बहुत गिर चुका था, उसको कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने सेबी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चालू की जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया. इट स्टार्टेड इन ईयर 1992 और उस पर्टिकुलर बोर्ड को बोला गया था कि यू नीड टू रेगुलेट ईच एंड एवरी एक्शन, यू नीड टू रेगुलेट, यू नीड टू सी ईच एंड एवरी एक्शन व्हिच हैज बीन टेकिंग प्लेस इन द शेयर मार्केट इंडस्ट्री जस्ट टू मेक इट बैक and bring it back in its normal routine. कंट्री में जो शेयर मार्केट की जो कंडीशन है उसको प्रॉपर बनाने के लिए उन्होंने सेबी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चालू की इन 1992 जो रेगुलेट करती है, अभी तक रेगुलेट करती है शेयर मार्केट. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज कंप्यूटराइज्ड. पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंप्यूटराइज नहीं था, उसको कंप्यूटराइज किया गया. ही गेव प्रायोरिटी टू रिमूव दिस फैक्टर ऑफ रिसेशन. मतलब जो भी रीजन है, जो भी ज्यादा डिफॉल्टेड इंडस्ट्रीज है, जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके ऊपर क्राइसिस का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, उन इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा उन लोगों ने ध्यान दिया. मतलब जो इंडस्ट्रीज ज्यादा लॉस कर रही थी उन इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया. ठीक है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया grew during first tenure of Dr. Singh as finance minister. India could recover the gold market mortgage with the Bank of England. The government got the support of the capitalist class as well as the middle class. As the government opened up the telecom sector, mobile phone services started all over the country. Dr. Singh signed the agreement with the World Trade Organization and launched the policy of privatization, liberalization and globalization. Now this is the very most important paragraph of this chapter, I can say. Sorry about that. Now, again sorry. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को तो बूस्ट दिया ही, पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर की हेल्प दी. और व्हाट ही डिड, ही ट्राइड टू ओपन अप द इंडस्ट्रीज ऑफ टेलीकॉम सेक्टर. ठीक है. टेलीकॉम सेक्टर को उन्होंने बूस्ट दिया. पूरी कंट्री में अब मोबाइल फोन्स को यूज करने की फैसिलिटीज चालू हो गई थी. पूरे कंट्री में बहुत सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज चालू हो गई थी. पूरे कंट्री में देयर वर ह्यूज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज व्हिच वर कमिंग अप विद ग्रेटर प्लान्स टू डेवलपमेंट. हमने जो गोल्ड को मॉर्गेज किया था, हमने वो मॉर्गेज से गोल्ड वापस भी ले लिया. हमने गोल्ड का लोन भी क्लियर कर दिया फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है. एंड इंडिया वाज स्लोली एंड स्टेडीली कमिंग बैक टू ट्रैक ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो क्राइसिस था उससे इंडिया थोड़ा थोड़ा करके बाहर आना चालू हो गया था. हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील साइन किया और हमने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया. एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. Now what are these three things? Liberalization मतलब freedom, privatization मतलब to open business and globalization मतलब at global level. अगर तुम लोग तीनों को एक साथ पढ़ोगे, freedom for private sector to do business at global level. अपने कंट्री के जितने भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थे उनको फ्रीडम दिया गया that you can do your business at global level. You can open up your business at global level. You can create new industries all over the world. You are an entrepreneur of India, you can do business at any corner of the world without any restrictions. The World Trade Organization has given us the permission. Okay, these all things were done under the finance ministry of Dr. Manmohan Singh, the one and only Dr. Manmohan Singh. He is a finest, I can say that right now alive. अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है जो इंडिया की कोई भी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए दिमाग लगा सकता है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह. आई पर्सनली फॉलो हिम वेरी मच.
Now the third topic we are going to cover is World Trade Organization. अब ये चीज है क्या? In 1995, India became a member of the World Trade Organization (WTO). The organization had the following objectives: to free trade between countries, to put an end to all those discriminatory laws, restrictions, rules, and policies that are hurdles in the way of international free trade, and to regulate global trade with the help of a formal multi-party mechanism. Now, what does this particular paragraph says? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ये देखता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो एकदम फ्रीली काम करे, विदाउट एनी बाउंड्रीज, विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी नेगेटिविटीज, और डेवलपमेंट फ्रीली हो, स्मूथली हो, जिससे कोई भी हर्डल या बैरियर क्रिएट ना हो। कोई भी चीज अगर रुकावट बन रही है कोई कंट्री के डेवलपमेंट में, तो कंट्री के डेवलपमेंट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से हेल्प करती है। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज गेट, GATT, existed at the international level before the World Trade Organization came into being. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मुलेट होने के पहले, बनने के पहले, इस पर्टिकुलर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम था गेट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये बंद होने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट यू कैन से दैट इसको ओवरटेक करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है, इट रेगुलेटेड कॉमर्स, कॉमर्स मतलब बिजनेस, सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, इन इंडिया देयर वेर अपोज्ड एक्सट्रीम व्यूज अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंडिया पाबंदी लगाया करती थी। इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पसंद ही नहीं था। इंडिया स्वदेशी अपनाओ ऐसा माना करती थी। पहले इंडिया क्या सोचती थी कि इंडिया में सिर्फ इंडिया के ही प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम नहीं है इंडिया में। येट इंडिया डिसाइडेड टू टेक इट्स मेंबरशिप। ठीक है, पहले ऐसा था पर मेंबरशिप ले लिया। द प्रोविजंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था रिगार्डिंग ग्रांट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। इन शॉर्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन was working for the development of each and every country, for the development of each and every industry in each and every country। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, हर एक एस्पेक्ट में हर एक कंट्री डेवलप हो, एक दूसरे की हेल्प करे। इफ कंट्री A is not having something which country B is having, then A and B should help each other in recovering to their deficiencies। ठीक है, A के पास अगर कुछ नहीं है और B के पास वो चीज है, तो B को A को हेल्प करना है। हर कंट्री को एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, जिससे हर कंट्री का डेवलपमेंट हो इक्वल तरीके से, विदाउट एनी अनबायस सिचुएशन, विदाउट एनी बायस सिचुएशन डेवलपमेंट हो, अनबायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ rapidly commercialized since India became a member of the World Trade Organization। जैसे ही इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, हम लोग के इधर एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, हर एक चीज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना चालू हो गई। As per the various reports of the World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different areas like reduction in below poverty line, that is BPL, population decline in infant mortality rate, availability of facilities regarding drinking water and waste water management। WTO, that is World Trade Organization के हिसाब से जब से इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, इंडिया हैज मेड अ ट्रिमेंडस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ waste water management, in the field of drinking water availability in isolated areas, in the field of health, in the field of education, in the field of each and everything, in the field of agriculture, in the field of industries। ठीक है, हर एक फील्ड में हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली इन्होंने एक चीज पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है, वो है बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। ठीक है, वो पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे मतलब गरीबी के रेखा के भी नीचे आते हैं, रेखा मतलब लाइन होती है। ठीक है, गरीबी के भी नीचे आते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती है, वैसे लोगों की पॉपुलेशन इंडिया में कम हुई है आफ्टर इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया साइंड द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज सप्ता, along the lines of the World Trade Organization। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो हमारा डील चल ही रहा था। हम लोग ने एक सप्ताह नाम की भी
ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, दैट इज साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें सारी साउथ एशियन कंट्रीज आती है. इंडिया रिमूव द इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेवरल कमोडिटीज फ्रॉम फॉर सार्क कंट्रीज. सार्क कंट्रीज मतलब अगेन ये साउथ एशियन कंट्रीज में का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है. सार्क कंट्रीज से आने वाले हमारे जितने भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो कमोडिटीज थे उसके ऊपर से हम लोग ने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए कि वी कैन नाउ एक्सपोर्ट एनीथिंग, वी कैन नाउ इंपोर्ट एनीथिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एनीथिंग. ठीक है. इंडिया ऑल्सो गेव डिस्काउंट ऑन इंपोर्ट ड्यूटीज. इंपोर्ट ड्यूटीज पे हम लोग ने डिस्काउंट देना भी चालू किया, जस्ट बिकॉज वी नीडेड to people to give us import, we should export to other countries. हमारा रिलेशन इंप्रूव हो ताकि डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज का हो. इंडिया ओपनड अप द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इंडिया ने इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के लिए चालू कर दिया. आज इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज है जो इंश्योरेंस बेचती है. In this week we have learned about the journey of India's economic development. In other chapter we are going to study about other fields of development in India. ये चैप्टर में हम लोग ने 3 चीज पढ़ी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा, रेमेडीज पढ़े हम लोग ने, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा. See now, this particular 3 topic covers only one thing, one and only one thing, that is the development of India in the field of economics. ठीक है. अपना कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें ये सर का बहुत बड़ा हाथ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का. इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया 1991 में बनाई. जब इंडिया बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे रेमेडीज ऐसे बनाए जिससे प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला. उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी ट्रीटी साइन की जो अभी तक चल रही है. आज इंडिया में बहुत सारी फॉरेन की कंट्रीज इन्वेस्ट कर सकती है. इंडिया की बहुत सारी कंपनीज फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकती है और हमारा रिलेशन उनके साथ ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है. हमारे प्रोडक्ट्स उनकी कंट्री में बिकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में बिकते हैं. अल्टीमेटली बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू डेवलप देमसेल्फ, बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू maintain a good relation, maintain good service in each and every country. Okay, so I will be winding up my lecture over here. This was very simple and very small lecture. I don't think it is small. 20 मिनट का आसपास हुआ रहेगा, 15 से 20 मिनट का लेक्चर हुआ रहेगा. Why I didn't take lecture in this 1 or 2 weeks? Just because I was busy somewhere else. I was suffering from a health issue and I won't be discussing that particular thing much. So I'm back in action now, and I hope I'll be posting my lectures regularly. I hope people have understood this particular thing. If you think you have forgotten the previous lectures, please पिछले वीडियोस को देखो और उस लेक्चर्स को स्टडी करके इस लेक्चर पे आओ अगर पिछला लेक्चर तुम लोग भूल गए हो तो. Okay, so this is Basit sir winding up now. No, not winding up. Before that, I'd like to tell you, don't forget to hit the like button if you like. यहाँ तक देख लिया है तो लाइक तो करना बनता है बॉस, बिकॉज कहीं ना कहीं इफ तुमने इतना सारा पूरा वीडियो देख लिया तो तुमको पसंद ही आया होगा. नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, इट इज़ नॉट एन इशू. नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन दबा के जाओ, और शेयर करना मत भूलना. अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग अ सोशल कॉज, वी आर सर्विंग द नेशन विद free education on YouTube. I want more subscribers, I want more students to join us, I want more students to see our video. It is your responsibility to share it and make it possible that we get more and more subscribers, we get more and more students to join us. Okay, so this is Basit sir winding up my lecture of chapter number 4, economic development with the chapter. ठीक है, winding up my lecture with the chapter. चैप्टर भी खत्म हो चुका है, 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हुआ है. ओके, सो thank you so much. Bye bye.